Today we will turn to the book of Hebrews, आज हम इब्रानियों की पुस्तक की ओर मुड़ेंगे। chapter 8. उसका 8वां अध्याय। We may be remembering in chapter 7, that theme was the theme was on the ministry of Melchizedek. और हमें याद आता होगा कि 7वें अध्याय का जब हमने अध्ययन किया तो वहां मलकीसिदक की सेवकाई के विषय में वो अध्याय था। There it is described when Abraham was returning from war, weary and tired. Melchizedek appeared from nowhere and blessed Abraham and also refreshed him by offering some food. और वहां इस बात का जिक्र किया गया है कि जब युद्ध से अब्राहम बिल्कुल थक कर और बिल्कुल थक कर जब वो लौट रहा था तो मलकीसिदक अचानक वहां से आया, उसे प्रोत्साहित किया और उसे कुछ भोजन भी दिया। And Jesus' ministry also, in a way, it was compared with that of Melchizedek. और एक तरीके से यीशु मसीह की सेवकाई की तुलना भी मलकीसिदक की सेवकाई से की गई है। So today we can also serve God and God's people with the same spirit of Melchizedek. और आज भी हम परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों की मलकीसिदक की आत्मा में सेवकाई कर सकते हैं। Without seeking anything for ourselves, secretly, silently bless somebody and disappear from the scene. इसके बजाय कि हम अपने आप के लिए किसी चीज की लालसा करते रहे, हम गुप्त में किसी को आशीषित करें और वहां चुपचाप वहां से गायब हो जाए। Chapter 8 continues with the theme of difference between the old covenant and new covenant. 8वें अध्याय में ये विषय है कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में क्या अंतर है। That chapter starts with saying that Jesus is our high priest at the right hand of God in heaven. इस अध्याय की शुरुआत होती है ये कहने से कि यीशु मसीह हमारा एक महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। We read that in verse 1, Hebrew 8:1, we have such a high priest who has taken his seat on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. हम ये पहले वचन में देखते हैं कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। In different scripture passages also we read the Lord is interceding for us day and night. अलग अलग वचनों में हम ये भी देखते हैं कि प्रभु दिन रात हमारे लिए मध्यस्थी करता है, प्रार्थना करता है। Meaning he has in his heart, he is interested in our lives. इसका मतलब वो हमारे उसके हृदय में हमारे जीवन में दिलचस्पी रखता है। In verses 3 to 5, 3 से 5 वचन में we read that the many of the Old Testament tabernacle etc. it's a shadow of heavenly things. और कई पुराने नियम के जो चाहे वो निवास तंबू हो या कई जो पुराने नियम की चीजें थी, वो एक मानो एक चिन्ह है जो आने वाली चीजों की है। We read in verse 5, Hebrews 8:5, that they are a copy and shadow of heavenly things. हम इब्रानियों 8:5 में देखते हैं कि वे स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। And also we read that Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle, and that you make all things according to the pattern which was shown to you on the mountain. वैसे ही लिखा है कि 5वें वचन में कि मूसा को ये चेतावनी दी गई कि जो वो पहाड़ पर था, देख जो नमूना तूने पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। So in a way, we can say the tabernacle which Moses physically built, it is a kind of shadow. It conveys some meaning of the heavenly realities. और इसलिए हम कह सकते हैं जो निवास मंडप है एक तरीके से वो एक मानो एक प्रतिरूप है, उसमें स्वर्गीय वास्तविकताएं हम देख पाते हैं। That is why the Lord insisted and told Moses, make sure when you build in the tabernacle, make sure that everything is exactly according to the pattern I gave to you on the mountain. और इसलिए प्रभु परमेश्वर मूसा से कहता है कि जो नमूना मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया बिल्कुल हूबहू उसके अनुसार ही सब कुछ बनाना।
So that encourages us that whatever we do, any service we do, the life, normal, ordinary Christian life we do, we can seek to pattern God's will for us. और ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जो कुछ करें, चाहे हमारी बड़ी ही आम मसीही सेवा क्यों ना हो, हर या हमारे जीवन में हर किसी की हम प्रभु का जो एक दिखाया हुआ नमूना है उसी के अनुसार हम इन चीजों को रखें. We are trying to do everything as the Lord is telling us. हर चीज को वैसा ही करने की कोशिश करें जैसे प्रभु हमें बताता है. Having a keen interest in knowing how God wants me to do this. एक ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखते हुए कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि मैं इस चीज को कैसे करूं. And also trying to learn what is pleasing to the Lord. और उसी के साथ साथ ये सीखना कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है. In other words, we can say, instead of doing things using human intelligence or ideas or cleverness, seek to do everything as God commanded. दूसरे शब्दों में, इसके बजाय कि हम चीजों को हमारे मानवीय बुद्धि से और मानवीय ज्ञान से, हमारे चतुराई से, हमारी योजनाओं से करने के बजाय हम चीजों को वैसे करें जैसे परमेश्वर ने उसको करने की आज्ञा दी है. The way we conduct things we should have a desire. Lord, I want this to be aligned according to your perfect will and perfect plan for me. हम करते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा, एक चाहत होनी चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ तेरे सिद्ध योजना, तेरे सिद्ध उद्देश्य के अनुसार हो. Verse 6. छठा वचन. Here is mentioned about Jesus, that Jesus is the mediator of a better covenant. यहाँ यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा. Yeah, this word better is many times repeated or used in the book of Hebrews. ये जो उत्तम या बेहतर शब्द है, कई बार इब्रानियों के पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है. That reminds us and encourages us that whatever God has planned for us is something better. ये हमें याद दिलाता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि जिस किसी चीज की परमेश्वर ने योजना बनाई है वो बेहतर है. In these for us, the new covenant Christians, whatever the Lord has preserved, offering us is something better. हम जो नई वाचा के मसीह है, जो भी प्रभु हमारे लिए उसने रखा है वो बेहतर है. The same words use another better, saying it was enacted on better promises. उसी वचन में एक और उत्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया है जहाँ कहता है कि वो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है. Meaning new covenant is enacted on better promises as compared to the old covenant. दूसरे शब्दों में, जो नई वाचा है पुरानी वाचा की तुलना में वो उत्तम या बेहतर प्रतिज्ञाओं के सहारे वो बांधी गई है. Old covenant was primarily earthly. और पुरानी वाचा जो थी वो प्राथमिक तौर पर पृथ्वी की एक वाचा थी. And new covenant is eternal, we can say. और हम कह सकते हैं कि नई वाचा मानो अनंत है. And there are better promises associated with the new covenant. और नई वाचा से बेहतर वायदे या बेहतर प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं. In verse 7, 7वें वचन में there is a statement that indicating the old covenant was not faultless. और एक ऐसा कथन है जो कहता है कि पहली वाचा जो है वो निर्दोष नहीं थी. Verse 7. 7वां वचन. It says that if the old covenant was faultless, there was no need for a second covenant. वहां लिखा है कि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती, या इंग्लिश में लिखा है पुरानी वाचा निर्दोष होती, तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता है, जरूरत ना पड़ती. So when we say that old covenant was not without fault, that doesn't mean that there's something wrong with the God's covenant itself. जब ऐसा लिखा है कि पुरानी वाचा निर्दोष नहीं थी, तो क्या इसका ये मतलब है क्या कि परमेश्वर की जो वाचा है उसी में कुछ दोष था, उसी में कुछ गड़बड़ी थी? It means that it was not complete in fulfilling God's long-term purposes. उसका मतलब ये है कि वो पूर्ण नहीं थी, कि परमेश्वर के जो लंबे समय के लिए जो उद्देश्य है उसे करने के लिए वो पूर्ण या पर्याप्त नहीं थी मानो. Yeah, in other words, it was not adequate, it was inadequate. दूसरे शब्दों में वो पर्याप्त नहीं थी अपने आप में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने में.
something more was required. उससे कुछ और था जिसकी आवश्यकता थी. The old covenant, why God gave old covenant, it had a purpose, परमेश्वर ने पुरानी वाचा क्यों दी थी, उसके पीछे भी कोई उद्देश्य था. but it was like a stepping stone for new covenant. पर मानो वो एक बीच का स्तर या बीच का एक पत्थर था जिस पर कदम रखकर आगे की नई वाचा आने वाली थी. So we can say, as part of God's long-term plan for humanity, old covenant was a part of it. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की जो मानवता के लिए जो लंबे समय का जो उसकी योजना थी, वो नई वाचा में मानो पूरी होती है. But of course, it was not complete in itself. सॉरी, पुरानी वाचा भी उस उद्देश्य का एक मकसद था, पर अपने आप में वो पुरानी वाचा पर्याप्त नहीं थी. Yeah, we can just look at quickly why God gave the old covenant. और बहुत जल्दी से हम देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने पुरानी वाचा दी. We can understand, we can say simply that the old covenant, one part of the old covenant was the law which God gave to Jews through Moses. और बड़े साधारण तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक जो हिस्सा है पुरानी वाचा का, वो व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी. And 10 commandments, as you know, is a very important part of God's covenant with the Jewish people. और जैसे आप जानते हो कि यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर की जो वाचा है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 10 आज्ञाएं थी. So that old covenant or the law worked like a temporary guardian, we can say. और इसलिए वो जो पुरानी वाचा या व्यवस्था थी, वो हम कह सकते हैं कि मानो एक मध्यस्थी का काम कर रही थी, जो देख रेख करने की वो काम कर रही थी. Yeah, guiding people and pointing people to Christ. और वो परमेश्वर की ओर या मसीह की ओर लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक मानव वाचा थी. We read that in Galatians chapter 3 verse 24. हम गलातियों 3:24 में से पढ़ते हैं. It says that law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. और ऐसा लिखा है कि इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई, या इंग्लिश में लिखा है रखवाले के समान हुई, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे. Yeah, the use is the law was like a guardian. और व्यवस्था जो है वो एक रखवाले के समान मानो था. In some translation, it is translated as a tutor or a schoolmaster. और जैसे हिंदी में भी और इंग्लिश के कुछ अनुवादों में लिखा है कि एक शिक्षक की तरह या स्कूल का जो अध्यापक होता है उसके समान वो था. Yeah, it was necessary for a time. कुछ समय के लिए उसकी आवश्यकता थी. But the ultimate goal was pointing to the Savior who was to come. और उसका आखिरकार मकसद तो यही था कि उस उद्धारकर्ता की ओर दिखाए जो आने वाला था. When the Lord revealed the justification by faith in Jesus Christ. जब प्रभु ने ये प्रकाशित किया कि मसीह के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहराया जाना. Because earlier during the old covenant, it was based on God's acceptance was based on people obeying those commandments. क्योंकि शुरुआत में पुरानी वाचा में परमेश्वर उनको इससे स्वीकार करता था कि वे उन आज्ञाओं को मान रहे हैं या नहीं. So the old covenant and the law which was part of the old covenant served a good purpose. और पुरानी वाचा और वो जो व्यवस्था था जो पुरानी वाचा के संबंध में थी, उसका एक अच्छा उद्देश्य था. Another purpose was to people or man should learn that to achieve God's standard with their own strength it is not possible. एक और उद्देश्य, एक और मकसद उसका ये भी था कि मनुष्य इस बात को सीखे कि परमेश्वर के मापदंडों तक खुद के परिश्रमों से, खुद के मेहनत से पहुंचना मुश्किल, असंभव है. That is why God wanted to make people understand, no matter or how hard we try, just by obeying with their own ability, one cannot reach the standard expected by God. और इसी वजह से परमेश्वर उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कितने भी कठिन परिश्रम हम क्यों ना कर ले, एक व्यक्ति परमेश्वर के मापदंडों को अपने खुद के परिश्रमों से उस तक नहीं पहुंच सकता. Yeah, but old covenant and the law associated old covenant ensured some external
order and external, we can say, cleanliness. पर वो जो पुरानी वाचा थी वो बाहरी तौर पर एक मानो उनमें एक अनुशासन को या बाहरी तौर पर एक शुद्धता उनमें आती थी उसके वजह से। So moving forward to verse 9, आगे बढ़ते हुए 9वें वचन में we read there, the new covenant is not like the old covenant. हम पढ़ते हैं कि नई वाचा पुराने वाचा के समान नहीं है। So we should, that should really sink into our hearts. और ये बात हमारे हृदयों में गहराई में बसनी चाहिए। The new covenant which God has offered for us now, it is not like the old. It is different. It is better. जो नई वाचा प्रभु ने हमारे लिए अब रखी है वो पुरानी वाचा के समान नहीं है, उससे बेहतर है, उससे उत्तम है। In what all ways it was better? किन तरीकों से वो बेहतर था? Good to understand. ये समझना बहुत अच्छा है। First of all, we can say the old covenant was including only the Jews. सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पुरानी वाचा केवल यहूदियों के लिए थी। That covenant was with Israel. वो जो वाचा है वो इस्राएल के साथ थी। But in the new covenant, it is extended to Gentiles through the Lord Jesus Christ. और नई वाचा में परमेश्वर की वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति लोगों तक भी बढ़ाई गई है। So we can see how we should be really grateful to the Lord. और हम देख सकते हैं कैसे हमें प्रभु के प्रति वाकई बहुत आभारी होना है। There are many New Testament passages some of us are familiar with. और ऐसे कई नए नियम के ऐसे वचन हैं जो हम सब जानते होंगे। How the Lord graciously included and the Gentiles or people outside the Jews. कैसे प्रभु ने बड़े अनुग्रह से सब लोगों को अर्थात यहूदियों के बाहर जो अन्य जाति है उन्हें भी शामिल किया। And in the new covenant, Jesus is identifying himself as the mediator and the guarantor of the new covenant. और नई वाचा में यीशु जो है वो उस नए वाचा का मध्यस्थ और एक आश्वासन देने वाला व्यक्ति के तौर पर वहां पेश आता है। And because it is through his death and resurrection that he inaugurated this new covenant that offers forgiveness and sins and a new relationship with God. कि उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही यीशु मसीह ने इस नई वाचा को उसकी शुरुआत की जो पापों की क्षमा भी देती है और परमेश्वर के साथ एक नया संबंध भी हमें देता है। And it's very important to be reminded and to be encouraged and be grateful how Gentiles are made part of that. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम याद दिलाएं, इसे हमें अपने आप को याद दिलाना और इसके लिए धन्यवादी होना कि कैसे अन्य जातियों को भी इस नई वाचा में शामिल किया गया है। We read in Romans chapter 11 and Ephesians chapter 2 and Galatians chapter 3. इसी बात को हम रोमियो 11, इफिसियो 2 और गलातियो 3 में भी पढ़ते हैं। How it is explained that how the Gentiles are grafted into the people of God and are heirs of the promises of God through faith in Jesus Christ. और यहाँ बताया गया है कि कैसे अन्य जातियों को भी अब उस परमेश्वर की वाचा में लाया गया है और वे अब वारिस है परमेश्वर के। So what we need to understand is the new covenant is fulfilled in Christ, Jesus Christ, fulfilled in Christ, and it is extended to all who believe in him, including the Jew and the Gentiles alike. और इससे हम क्या समझते हैं कि नई वाचा जो है वो मसीह में Uncle, can you repeat once? Yeah, so new covenant was fulfilled in Jesus Christ and extended to everyone who believed in him or accepted him, whether Jew or a Gentile. और नई वाचा जो है वो यीशु मसीह में पूरी की गई और वो हर एक व्यक्ति पर उसको प्राप्त कर सकता है जो उस पर विश्वास करे, चाहे वो यहूदी हो या वो अन्य जाति हो। Now verses 10 to 12 that new covenant is clearly explained. और 10 से लेकर 12 वचन में नई वाचा को स्पष्टता से वहां समझाया गया है। This is actually taken from Jeremiah. और ये सारे वचन वाकई तो यिर्मयाह की पुस्तक से लिए गए हैं।
So we can just for understanding purpose we can divide into 3 simple sections. और समझने के लिए हम इस भाग को 3 अलग-अलग चीजों में बांट सकते हैं. Let me see with Jeremiah chapter. Yeah, anyway, I don't remember which passage from Jeremiah. 31. Yeah. Anyway, so we can first of all, in the new covenant, God promises not only to forgive our sins, but also never to remember our past sins. सबसे पहले तो प्रभु ने नई वाचा में हमें ये प्रतिज्ञा, ये वायदा दिया है, ना केवल हमारे पापों को क्षमा करना, पर उसी के साथ साथ कभी भी हमारे पापों को फिर याद भी नहीं करना. We read that in verse 12, I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. और ये 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा. This is a really amazing promise and component of the new covenant. बहुत ही वाकई ये एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत ऐसा वायदा और अद्भुत बात है नई वाचा के विषय में. Even though it may seem to be very simple, but it's very important that we all understand and we experience it in our lives. इसके बावजूद कि ये बहुत साधारण मालूम पड़ता है, पर हम सब इसके अपने जीवन में इसको अनुभव कर सकते हैं. We can read that once again. The Lord is saying, I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. हम फिर एक बार उस वचन को पढ़ सकते हैं. प्रभु कहता है, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा. See, many of us, I consider myself, I think that we have lived such a wicked life before knowing Christ. और हम में से कई जो है, मैं अपने आप के बारे में भी सोचता हूँ कि हमने मसीह में आने से पहले इतना एक दुष्ट जीवन जिया है. But once we have received forgiveness and we are justified by the blood of Jesus Christ. पर एक बार जब हमने क्षमा प्राप्त कर ली है और हम मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, उसके बाद God looks at us as though we had never sinned in our entire life even once. परमेश्वर हमारी ओर ऐसे देखता है कि मानो हमने अपने जीवन भर में कभी पाप न किया हो. That is the power of justification. धर्मी ठहराए जाने की ये सामर्थ्य है. You know, some of us think I have sinned more than others. हम में से कुछ लोगों को लगता है कि मैंने तो औरों से ज्यादा पाप किया है. But God totally forgives everyone who repents, whatever is the magnitude or depth and breadth of their sinful nature in the past. पर परमेश्वर हर एक को क्षमा करता है, चाहे कितनी भी उनकी गहराई ना हो, उनके पापों की अतीत में कितने भी गहराई पर वो क्यों ना गिरे हो, फिर भी प्रभु सबों को क्षमा करता है. I remember there was a time in my life where I could not really receive. In my mind, I understand God for forgiving me, but in my heart, I had not received it. और मुझे याद है कि एक समय था मेरे जीवन में जहां मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था. मेरे मन में तो मैं समझ गया था कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, पर मेरे हृदय में मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था. And the same sins I would keep on confessing again and again to the Lord. और वही पापों को बार बार परमेश्वर के सामने मैं अंगीकार करते रहता था. So I remember one early morning when I was just for my heart, I was repeat again confessing some of my sins, which I was not 100% sure whether God had forgiven me. और मुझे याद है एक सुबह जब फिर एक बार मैं प्रार्थना करते हुए कुछ ऐसे पापों को कबूल कर रहा था जो मुझे ये आश्वासन नहीं था कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है या नहीं. Yeah, I remember the Lord was in a lovingly, gently, little talking to me in a little rebuking tone. और मुझे याद है कि प्रभु ने बड़े प्रेम से, बड़े कोमलता से, पर एक सुधारने की तरीके से मुझसे बात की. Can you please stop confessing the same sin again and again? और मानो प्रभु ने कहा, क्या कृपया तुम उसी पाप को बार बार कबूल करना बंद करोगे?
when he had repented about those sin and when he confessed it to me, very first instance, I have already forgiven you. जब तुमने उन पापों से मन फिराया है और जब तुमने उन पापों को अंगीकार पहले बार किया था, उस पहले बार में ही मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था. Please don't repeat confessing the same sins. कृपया उन्हीं पापों को फिर दोहरा कर मेरे सामने कबूल मत करो. Yeah, God is so good. I received an assurance and that rebuke, it helped me. और परमेश्वर इतना अच्छा है, मुझे वो आश्वासन भी प्राप्त किया मिला और उस सुधार ने भी मेरी सहायता की. We read in 1 John chapter 1 verse 9. हम पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं. There we read, if we confess our sins, we can say if you repent and confess for clarifications. और वहां लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, और स्पष्ट करने के लिए हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदि हम मन फिराकर अपने पापों को मान ले तो. And we have no desire to continue in the same sin. और हमारे अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं कि उन्हीं पापों को हम उसी पापों में जारी रहे, उन्हीं पापों को बार बार करें तो. Yeah, the Lord is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. And it spoke to me, it especially mentioned he will cleanse you from all unrighteousness. और इस वचन ने मुझसे बात की और विशेषकर लिखा है कि वो सब अधर्म से हमें शुद्ध करेगा. Meaning, if we are repentant and confess, the very first time we confess with repentance, the Lord will forgive entirely and God will also cleanse us from all righteousness. और पहले बार ही जब हमने प्रभु के सामने पापों को माफी मांगी थी, वो ना केवल हमें क्षमा करेगा बल्कि सब अधर्म से भी शुद्ध करेगा. Because that is God's character. It is associated with his faithfulness and his righteousness, as we read there. ये परमेश्वर का चरित्र है, जैसे वहां लिखा है कि वो उसके विश्वास योग्यता और उसके धार्मिक होने से ये जुड़ा हुआ है. And I have seen many Christians who find it difficult to believe that God has completely forgiven their sins. और मैंने वास्तविकता में ऐसे कई मसीहों को देखा है जिनको बहुत मुश्किल होता है इस बात पर विश्वास करने में कि परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया है. And many Christians find it very difficult to believe that God will not remember their wicked sins anymore, which they are repentant. और कई मसीहों को ये विश्वास करने में भी बहुत मुश्किल होती है कि परमेश्वर उनके जो दुष्ट पाप है, जिन पापों का उन्होंने प्रभु के सामने कबूल कर लिया है, उन्हें फिर याद नहीं करेगा. So this part of the new covenant is a thrilling. When we see the heart of God, it should really thrill our hearts. और नई वाचा का ये जो हिस्सा है, जब हम देखते हैं इसे तो वाकई हमारे हृदय इससे रोमांचित हो जाने चाहिए. When we enter the new covenant, we need not look back to our past. जब हम नई वाचा में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने अतीत को देखने की आवश्यकता नहीं. If God is not remembering my sin, why I should remember it? जब परमेश्वर मेरे पापों को याद नहीं करता तो क्यों मैं उसे याद करूं? Yeah, actual meaning is God is not bringing into memory. Means we may remember. I can remember many things I did, but none of them condemn me today. उसका वास्तविक मतलब ये है कि प्रभु उन्हें फिर याद नहीं करता. मैं शायद अपने कई पापों को याद कर सकता हूं, पर उनमें से कोई पाप मुझे आज दोषी नहीं ठहराते या दंडाज्ञा मुझ पर नहीं लाते. We should not bring to our memory things, our sinful life, our sins, etc., which God has forgiven, and in a way, accusing us and condemning us and putting us down, discouraging us. हमें अपने पुराने अतीत के पापों को फिर याद नहीं करना है, जो हमने पहले के दिनों में किए, जो माफी मांग ली है, ताकि वो हमें निराश करे या हमें नीचे रखे या हम पर दंड आज्ञा करे. उन चीजों को हमें याद नहीं रखना है. One more verse, Romans chapter 8 verse 1. एक और वचन रोमियो 8 का 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं. इंग्लिश में लिखा है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं. Because the law of the Spirit of life in Christ Jesus set you free from the law of sin and death. दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है. Yeah, we can remember our old sins for good purposes. हम अपने अतीत के पाप कुछ अच्छे उद्देश्यों से याद कर सकते हैं. To express gratitude to the Lord.
प्रभु के प्रति अपने धन्यवाद को प्रकट करके how much the Lord has forgiven us. कितना प्रभु ने हमें क्षमा की है। And it will also help us to humble ourselves. और वो हमारी सहायता इसमें भी करेगा कि हम अपने आप को नम्र करें। And it is true that when we walk close to God, more things will be revealed to us. और ये भी सच है कि जब हम प्रभु के और नजदीक से चलते हैं तो ज्यादा और ज्यादा चीजें हम पर प्रकट की जाएंगी। It's like the more we come closer to a bright light, things will become clearer and clearer. बिल्कुल जैसे जितना हम एक तेज ज्योति के नजदीक आएंगे उतनी चीजें और साफ और स्पष्ट होती जाएंगी। That is why when Apostle Paul made a lot of progress towards the end of his, he could say that I am the chief of all sinners for whom Christ died. और इसी वजह से प्रेरित पौलुस जब अपने जीवन के अंत में आता है वो कहता है कि मैं पापियों में से सबसे मुख्य हूँ जिसके लिए मसीह यीशु मरा। So he was not saying that in a way nagging him or condemning him or discouraging him. और वो इन वचनों को ऐसे नहीं कह रहा था कि किसी तरीके से जहां वो अपने आप पर दोष लगाए या उनको पाप उसे बार बार याद आ रहे हैं, इस तरीके से वो नहीं कह रहा था। I'm a chief of sinners, but still I received forgiveness. मैं पापियों का मुखिया हूं पर फिर भी मैंने क्षमा प्राप्त की है। So one important foundational part of new covenant is that God offers to forgive our sins and he offers not to remember our past. और एक महत्वपूर्ण और बुनियादी पहलू नई वाचा का यह है कि परमेश्वर हमारे पापों को केवल क्षमा ही नहीं बल्कि हमारे अतीत को याद भी नहीं करता। Second part is we can know God personally as our Father. दूसरा भाग ये है कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर अपने पिता के तौर पर जान सकते हैं। We read in verse 11, all shall know me from the least to the greatest. 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हर एक मुझे जानेगा छोटे से लेकर बड़े तक। Every person, even it is written again, from least to the greatest, everybody will know the Lord in person. हर एक व्यक्ति, फिर एक बार वहां लिखा है कि छोटे से बड़ा हर एक व्यक्ति परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानेगा। We don't need to be somebody great to know the Lord or to be accepted by the Lord. और परमेश्वर को जानने के लिए या परमेश्वर के द्वारा स्वीकार होने के लिए हमें कोई महान व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। Least children can know the Lord. जो सबसे छोटे हैं बच्चे, वे भी परमेश्वर को जान सकते हैं। So in whichever way we can think, the least can know the Lord in person. जिस किसी तरीके से हम परमेश्वर को, शायद हम समझते होंगे हम सबसे छोटे हैं, फिर भी हम परमेश्वर को जान पाएंगे। So knowing God personally is a very important part of the new covenant. और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानना ये नई वाचा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। That is why in our church we again encourage everyone and we try to live a personal close walk with the Lord. इसी वजह से हमारे कलीसियाओं में बार बार हम इस पर जोर देते हैं, याद दिलाते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक निकटता, एक घनिष्ठ संबंध या चाल सी चले। We emphasize the need for a personal devotion to Christ. हम जोर देते हैं इस विषय पर कि एक आवश्यकता है कि हमारा यीशु मसीह के प्रति एक निज हमारी एक भक्ति हो। Yeah, our devotion to Christ should be more important than any ministry, any work that we do. और परमेश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी काम से या कोई किसी भी सेवकाई से जो हम करते होंगे। In other words, we can say we should be primarily worshippers of God. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर हमें परमेश्वर के आराधना करने वाला बनना है। We should pursue increasingly to learn and to worship God, to be devoted to Him from our heart. और बढ़ते क्रम पर हमें सीखना है कि प्रभु की आराधना करना और अपने हृदय से उसकी आराधना करना। And so that is an important part of the new covenant. और ये एक मुख्य महत्वपूर्ण भाग है नई वाचा का। In other words, we can say a personal love relationship with the Christ. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रेम भरा संबंध प्रभु के साथ। It's very true. When we have a love relationship with Christ, living for the Lord will not be a boredom or it will not be a burden. ये बिल्कुल सच है। जब मसीह के साथ हमारा एक प्रेम भरा संबंध होगा तो मसीह जीवन कोई उबाऊ चीज हमारे लिए नहीं बनेगी, ना ही कोई बोझ भरी चीज बन जाएगी। In the new covenant, God has intended that our Christian walk should be motivated by our
personal relationship and our love for Jesus Christ. और नई वाचा में परमेश्वर का मकसद ही ये है कि हमारा मसीह जीवन प्रभु के प्रेम पर आधारित हो और जो कुछ हम करें उसके प्रेम के वजह से हम करें. Even our keeping commandments, obeying the Lord, doing things for the Lord, our service, everything to be motivated out of our love relation with the Christ. यहाँ तक कि जो जिन आज्ञाओं को हम मानते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो कुछ हम प्रभु के लिए करें, वो उसके प्रति जो हमारा प्रेम है वही हमें विवश करना चाहिए उन चीजों को करने के लिए. So I want to encourage everyone, pursue that path. Seek to have a closer, personal, intimate relationship with the Christ. और इसलिए मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप इसकी खोज करें कि आप इस मार्ग पर हो जहां मसीह के साथ आपका एक निज व्यक्तिगत संबंध और भक्ति उसकी प्रति हो. And many things will be taken care when you live out of, as Paul said, the love of Christ compels me. और कई चीजें अपने आप से सही हो जाएंगी, जैसे पौलुस ने भी कहा कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है. The third part is again, it is God now promises to write His laws in our hearts and in our minds. और तीसरा भाग ये है कि परमेश्वर अब ये वायदा देता है, एक वचन देता है कि वो अपने व्यवस्था को हमारे हृदय में और अपने मनों में लिखेगा. Yeah, we read that in verse 10. I will put my laws into their minds and write them on their hearts. तो वचन कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा. See, earlier in the old covenant, it was on the outside. देखिए, पहले पुरानी वाचा में ये बाहरी तौर पर था. God's laws were written on tablets of stone. परमेश्वर की आज्ञाएं पत्थर की पटरियों पर लिखी गई थी. Now He writes that right inside us. अब वो इन चीजों को हमारे अंदर लिखता है. Yeah, we can say in a way, God will give us that desire to live for Him. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर तो पहले हमें एक इच्छा, एक चाहत देगा कि हम उसके लिए जीवन जिए. And He will also give us the ability. उसी के साथ साथ वो हमें क्षमता भी देगा. You know, we read in Philippians that it is God who wills to do His good pleasure in us. और हम इसे फिलिपियों में भी पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर इच्छा और काम दोनों अपनी स्वेच्छा निमित्त करता है. Sometimes we can sense in our own Lord, it is after all you who put that desire in me. We may be able to say. और कभी कभी हमें भी एहसास होता होगा कि प्रभु आखिरकार तूने ही इस इच्छा को मेरे अंदर डाला है, ऐसा हम कह पाते हैं. Not because I am better than anybody else. इसलिए नहीं कि मैं किसी और व्यक्ति से बेहतर हूँ. Not because I have a passion or sincerity more than others. इसीलिए भी नहीं कि किसी और व्यक्ति से मेरे मन में ज्यादा एक तीव्र लालसा है या किसी और से मैं ज्यादा आतुर हूं ऐसा. Even that desire we can attribute to the Lord. यहाँ तक कि हमारे मन में जो इच्छा है वो भी प्रभु की वजह से हम कह सकते हैं. And not only that desire is there, He also provides the ability. पर केवल इच्छा नहीं, इच्छा तो है, उसी के साथ साथ परमेश्वर क्षमता भी प्रदान करेगा. So that ability is provided by the indwelling Holy Spirit. और वो जो क्षमता है वो हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेगा. It's a wonderful thing as compared to old covenant, which was from commandments written on tablets. So now it is much deeper right inside us. ये एक अद्भुत चीज है कि पुरानी वाचा में कैसे वो पत्थर पर लिखी गई थी, पर अब वो व्यवस्था हमारे अंदर लिखी गई है. And it's not only we have the desire, Lord also give that ability. और केवल ये नहीं कि हमारे अंदर वो इच्छा होती है, पर परमेश्वर हमें उसकी क्षमता भी देता है. In a quick, old covenant, many things are 10 commandments are, for example, you shall not, in that sense. और हम बहुत जल्दी से देख सकते हैं, हम जानते भी हैं पुरानी वाचा की कई आज्ञाएं, यहाँ तक कि 10 आज्ञाओं में भी जो आत्मा है, मानो तुम ये करो, तुम ये ना करो, तुम ये करो, तुम ये ना करो, ये आत्मा है. We can read that in Exodus 20. हम उसको निर्गमन इसके 20 अध्याय में पढ़ सकते हैं. In the passage we read today about the new covenant, it is I will. पर जो वचन आज हमने नई वाचा के बारे में पढ़े, उनमें क्या लिखा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा. It is like God taking that initiative along with us. इसका मतलब परमेश्वर वो पहल हमारे बारे में हमारे लिए उठाता है. And he is enabling us
like a co-worker working with us. और वो हमें सक्षम भी बनाता है, एक हमारे साथ सहयोगी की तरह वो हमारे अंदर से हमें सक्षम बनाता है। Yeah, in the through the Bible commentary, the Lord, Brother Zach is using an illustration. और थ्रू द बाइबल जो है पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए उसमें भाई जहाँ किस उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। The new covenant, it is like a husband telling his wife, let us do it together. नई वाचा ऐसा है मानो एक पति अपने पत्नी से कहता है, आओ हम इसे एक साथ करें। I will help you. मैं in तुम्हारी सहायता task. करूंगा, मैं इस काम में तुम्हारी सहायता करूंगा। I know you have a lot of things to do, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत काम है करने के लिए, but don't worry. Earlier, I know you were supposed to do alone. You shall, I was saying, but now I will help you. पर चिंता मत करो। देखो पहले मैं तुमसे कहता था तुम ये करो, तुम ना करो, तुम ये करो, पर अब मैं खुद तुम्हारी सहायता करूंगा। In another example, we can say it's like a father telling a small child, I will hold your hand and teach you how to write. दूसरे शब्दों में मानो एक पिता छोटे बच्चे से कहता है, देखो मैं तुम्हें हाथ पकड़कर लिखना सिखाऊंगा। When our children were small, we probably helped them to write ABCD. और हमारे बच्चे जब छोटे थे शायद हमने उनकी सहायता की कि वो अ आ ई या एबीसीडी लिख पाए। How did you do it? None of us did probably give them a pencil and commander, you write now A and B. हमने कैसे किया? हम में से किसी ने भी अपने बच्चों को एक पेंसिल थमाकर आज्ञा नहीं दी, चलो मुझे ए और बी लिख के दिखाओ। We were taking their own little arm or fingers in our own hand, and our own hands were teaching them how to write that A. हमने कैसे किया? हमने खुद उनके छोटे हाथों को, छोटे उंगलियों को थामा, हमने खुद अपने हाथ से उन्हें लिखना सिखाया कि देखो ए ऐसा लिखते हैं। So God has opened this blessed new covenant for us. और परमेश्वर ने ये धन्य नई वाचा हमारे लिए खोली है। And may God really help us to make it a reality in our lives. और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे कि उसे हमारे जीवन में एक वास्तविकता वो बना दे। Instead of struggling with our own lives, seeking to take God's help. इसके बजाय कि हम खुद अपने जीवन में संघर्ष करते रहे, हम परमेश्वर की सहायता को खोज सकते हैं। But in other words, we can throw ourselves into the Lord's hands. दूसरे शब्दों में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में मानो फेंक सकते हैं। So that chapter is ending with the one verse. और उस अध्याय का अंत एक वचन के साथ होता है। Yeah, before that I want to say, as a new covenant Christian, we should be able to say, recognize, I can do nothing without Jesus. और उसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि नई वाचा के मसीही होने के नाते हमें इस बात को पहचानना है कि मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। But along with that, I can say, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. पर उसी के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि मैं सब काम उसके द्वारा कर सकता हूं, मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है। And that passage chapter is ending with this statement. He has made the first covenant obsolete, and whatever is becoming obsolete and going old is ready to disappear. और उस अध्याय के अंत इस वचन से होता है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। God has made obsolete that old covenant. उस पुरानी वाचा को परमेश्वर ने पुराना और जीर्ण घोषित किया है। And we are encouraged to walk in the new covenant. और हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम नई वाचा में चले। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे।